Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will study the topic that is measurement of E over M value of electrons. The experiment is same as was carried out for the determination of properties of electrons or cathode rays. E over M value of electron was measured by J. Thomson in 1897, and he devised an instrument that was just like a discharge tube. Now, here is the discharge tube. In this discharge tube, here is anode, here is cathode, and both of these are connected to a high voltage battery. Then discharge tube is connected with vacuum pump so that pressure can be adjusted inside the tube. And here he made arrangement to apply magnetic field as well as electric field. Now, when electrodes were connected to a high voltage battery from cathode rays were produced and they traveled towards anode, but anode was hollow, that is, there is hole between anode, so electrons or cathode rays move through this hole and go towards this screen. Here is a screen on which flashes of electrons can be seen. Now, when magnetic field was applied to the moving electrons moved in a circular path and they showed a deflection and they struck at point P3. This is due to the reason that moving electrons have their field and magnetic field has its field lines. So when electrons move through magnetic field force them to move in a circular path. These crosses show that the direction of magnetic field is from upward to downward. So the electrons move in a circular path and they strike at this point, and here we can see a fluorescence. So this deflection was due to magnetic field when he applied magnetic field. Now next he turned off magnetic field and then he turned on electric field, and in case of electric field, here is anode, positive plate, and here is cathode, that is negative plate. Now the influence of these moving electrons are cathode rays strike at point P2, because we can see a fluorescence at this point. Now the electrons move toward this point because electrons are negatively charged and they are attracted by the anode positive plate. So they moved up in upward direction and they struck at this point. Now when there was no electric and magnetic field, then electrons struck at this point P1, and when he applied both magnetic field as well as electric field and he adjusted the two fields in such a way that in the presence of magnetic as well as electric field, electrons strike at this point P1. So it was his experiment. In this experiment, here is anode and cathode. When these were connected to a high voltage battery, fast moving electrons moved from cathode towards anode, but there is hole between the anode, so electrons moved in a straight line. But when magnetic field was applied, they struck at point P3. When electric field was applied, the electrons struck at point P2. And when there was no field, then electrons struck at P1. And then he adjusted the two fields in such a way that in the presence of two fields, electrons struck at point P1. Now, by comparing the strength of these two fields, he measured the E over M value of electron, and he found its value, that was 1.758 into 10 raised to power 11 coulombs per kg. तो इससे हमें ये पता चलता है कि
जो 1 kg इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम्स ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने इलेक्ट्रॉन्स की E/m वैल्यू डिटरमिन की। Now, the next experiment was measurement of charge on electron, and it was determined by scientist Millikan, and that's why it's also known as Millikan's oil drop method. And he did this in 1909. First one, I will explain you the apparatus that was used in this experiment. Here is a metallic chamber. ये एक मेटल से बना हुआ चैम्बर था। ठीक है, मेटल क्योंकि हमने इसमें एक्स रेज भी यूज करनी है, इसलिए इस चैम्बर को मेटल का बना होना चाहिए ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो। ये एक मेटेलिक चैम्बर है जो आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ये एक प्लेट नजर आ रही है आपको और एक ये नीचे प्लेट नजर आ रही है। ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है ये एनोड है, ठीक है, पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और जो नीचे वाला इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है। नेक्स्ट ये कि जो एनोड था इसके दरमियान में एक होल रखा गया। ठीक है, एनोड के दरमियान में एक बारीक होल रखा गया, बारीक होल है। नेक्स्ट यहाँ पर एक विंडो है। ये विंडो किस लिए है कि हमने बाहर से माइक्रोस्कोप से अंदर की एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना है कि नेक्स्ट क्या हो रहा है, वो भी मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको किसको ऑब्जर्व करना है, ऑयल ड्रॉपलेट्स को करना है हमने। नेक्स्ट एक विंडो इस साइड पे है, यहाँ से एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्स रेज फॉल की जाएंगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये जो एयर है इसको आयोनाइज करने के लिए यहाँ से एक्स रेज फॉल की जाएंगी। नेक्स्ट, दिस apparatus इज एन एटोमाइजर। एटोमाइजर किस लिए यूज किया गया है कि इसके अंदर से यहाँ पर ऑयल है, इसकी हेल्प से प्रेशर से यहाँ पर फाइन स्प्रे किया जाएगा ऑयल ड्रॉपलेट्स का। ठीक है, यहाँ पर फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स किया जाएगा। तो स्टार्ट में यहाँ पर फाइन स्प्रे किया गया ऑयल ड्रॉपलेट्स का। उनमें से कुछ जो ड्रॉपलेट्स थे वो इसके सेंटर में, मैंने आपको बताया था कि होल है एनोड के सेंटर में, यहाँ से वो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे जाएंगे। अब जब वो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे जा रहे थे तो उनमें से किसी एक ऑयल ड्रॉपलेट को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया गया, उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी मेजर की गई कि वो किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट थी बच्चों, ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी थी कि ऊपर से जिस चीज को भी हम गिराएं वो नीचे की तरफ जाती है। वो क्यों नीचे की तरफ जाती है? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जा रहा था, इसलिए उसकी वेलोसिटी थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम जी। एम उसका मास है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट जब नॉर्मल कंडीशन में नीचे जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एम जी के। एम उसका मास है और जी उसका एक्सेलरेशन है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मेजर की गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अप्लाई किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन दोनों एनोड्स को जब बैटरी के साथ जोड़ा गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने से पहले बच्चों यहाँ पर एक्सरे फॉल की गई। एक्सरेज क्या करेंगी कि यहाँ पर जो भी गैस प्रेजेंट है इस चैम्बर के अंदर, वो गैस को एक्सरेज आयोनाइज कर देंगी, यानी उसके पॉजिटिव एटम्स बन जाएंगे। और नेक्स्ट ये कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऑयल ड्रॉपलेट एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये माइक्रोस्कोप से देखा गया कि जो ऑयल ड्रॉपलेट था उसने अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दी। पहले वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा था, लेकिन जब आयोनाइज करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ड्रॉपलेट ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब वो ऊपर की तरफ क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लेट है, एनोड है। तो एनोड जो है वो उस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब उसकी वेलोसिटी v2 मेजर की गई और देखा गया कि जो v2 थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ई माइनस एम जी के। अब यहाँ पर ई क्या है? ई स्मॉल ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा और जो कैपिटल ई है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हम माइनस कर देंगे एम जी। अब यहाँ पर माइनस एम जी क्यों करेंगे? क्योंकि एम जी था उसकी पहले वेलोसिटी थी जिससे वो नीचे की तरफ जा रहा था अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब अगर उसने ऊपर की तरफ जाना है तो उस पर इतनी फोर्स लगनी चाहिए जो पहले तो एम जी को
स्टेबलाइज करे, एम जी के इक्वल फोर्स होगी तब वो स्टेबल हो जाएगा, पार्टिकल नीचे भी नहीं जाएगा ऊपर भी नहीं जाएगा। लेकिन जब फोर्स एम जी से इंक्रीज होगी तो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देगा। तो टोटल फोर्स क्या है, टोटल फोर्स में से हम एम जी माइनस करेंगे तो जो पीछे बचेगी फोर्स वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी जिससे वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जी देखिए, एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि मिलिकन ने डिटरमिन की चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय सिंपल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो मैंने आपको बता दी कि मेटेलिक चैम्बर है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, माइक्रोस्कोप है, विंडो है यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, और ये एटमाइजर है जिससे हमने स्प्रे करनी है फाइन ऑयल ड्रॉपलेट्स की, और एक्स रेज फॉल करनी है इस चैम्बर को आयनाइज करने के लिए। तो जब वो ड्रॉपलेट नीचे आ रहा था बच्चों, तब उसकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एम जी के, जहाँ पर एम उसका मैस और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। उसके बाद एयर को आयोनाइज किया गया, यहाँ पर चैम्बर में एयर को आयोनाइज किया गया। जो ड्रॉपलेट था वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ मूव होते हुए जो उसकी वेलोसिटी v2 है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ई माइनस एम जी। अब ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ई क्या है, उस इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकल पे चार्ज। और इसमें से माइनस एम जी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस एम जी वो फोर्स थी जिससे वो नीचे की तरफ जा रहा था। अब उस फोर्स को हम माइनस करेंगे तभी हमारे पास वो बाकी फोर्स आएगी जिससे वो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में से हम माइनस कर देंगे एम जी को, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी अप मूविंग पार्टिकल ऑफ ऑयल की, ऑयल ड्रॉपलेट की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड करेंगे। सो v1 डिवाइडेड बाय v2 एंड mg डिवाइडेड बाय e माइनस mg। अब इस इक्वेशन में देखें बच्चों, जो v1 और v2 है, वेलोसिटीज हैं, ये माइक्रोस्कोप से मेजर कर ली जाएंगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यहाँ पर मेजर की गई कि पहले पार्टिकल किस वेलोसिटी से नीचे जा रहा था और ऊपर वो किस वेलोसिटी से जा रहा है। m इसमें कांस्टेंट है क्योंकि मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट है, कांस्टेंट रहेगा, और g भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब देखें v1 v2 mg हमने फाइंड आउट कर लिया। जो e कैपिटल E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो पीछे सिर्फ स्मॉल e रह गया जो कि चार्ज है, कि उस पर चार्ज कितना है। ठीक है, उस पार्टिकल पे चार्ज कितना है। अगर हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें, ठीक है, v1 v2 mg कैपिटल E, तो सिर्फ E ऐसा रह जाएगा जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सारी वैल्यूज पुट करने से जब E की वैल्यू फाइंड आउट की गई तो वो थी 1.59 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी उस वक्त 19th सेंचुरी में जब उसने फाइंड आउट की तो वैल्यू 1.59 इंटू 10⁻19 कूलम थी, जो कि हमारी अब वाली वैल्यू के बहुत ही क्लोज है। अब जो रिसेंट वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। तो देखिए ये इसके बहुत क्लोज है। 9 को अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ये 1.6 ही आंसर आएगा हमारा। तो अब नेक्स्ट उसने देखा कि जो सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स थे उन पे चार्ज की अमाउंट सेम नहीं थी, बट जो मिनिमम अमाउंट थी वो ये थी। यानी कुछ पे ज्यादा चार्ज था, कुछ पे कम चार्ज था, लेकिन उस कंटेनर में जो मिनिमम चार्ज था वो ये था। यानी ये अगर किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो उस पर ये चार्ज आएगा, अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए तो उसका चार्ज उससे डबल होगा, अगर किसी पार्टिकल ने 3 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए तो उसका चार्ज उससे ट्रिपल हो जाएगा। तो ये वो मिनिमम चार्ज था जो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से था, जिसको मेजर किया गया तो उसकी वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम बाई। तो इस तरह मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। और अब यही जो चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट हैज बीन मेजर्ड सो फार। इलेक्ट्रिक करंट भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का जो कि अब तक मेजर किया जा चुका है। इस तरह इस एक्सपेरिमेंट से चार्ज मेजर किया गया। अब नेक्स्ट हमने मेजर करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसी से अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम ई ओवर एम रेशियो जो थी वो जे जे थॉमसन ने फाइंड आउट कर ली थी। ई ओवर एम वाज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम। ठीक है, E over M is equal to 1.75 into 10 raised to power 11 कूलम। और अभी अभी चार्ज फाइंड आउट कर लिया हमने 1.602 into 10 raised power minus 19 कूलम। सो E over M is equal to this। अब हम यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर देंगे।
ठीक है, ई की वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जो थर्ड फैक्टर है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब साइड पे लेके आएंगे, इट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज टू मैस रेशियो। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास आएगी 9.1 इंटू 10⁻³ kg. So it was mass of electron that was determined after determining the E over m value. E over m रेशियो फाइंड आउट की गई पहले, फिर उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया गया, तो लास्ट वन फिर इन वैल्यूज से हम mass of electron फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 9.109 इंटू 10⁻³ kg. नेक्स्ट हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। मेरा ख्याल है आप सब लोग इस तीनों पार्टिकल्स से अच्छी तरह फेमिलियर हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पहले हम इन पे चार्ज देखेंगे कि कितना है। प्रोटॉन पे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही माइनस चार्ज है, ठीक है। और ये रिलेटिव चार्ज +1 और -1 0। नेक्स्ट मैस है इनका केजी में। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है। न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है। और इलेक्ट्रॉन का ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज 9.10 इंटू 10⁻⁻³ kg है। और अगर हम इस मैस को AMU में मेजर करना चाहें तो ऑलमोस्ट हम प्रोटॉन का मैस 1 AMU लिखते हैं, न्यूट्रॉन का भी 1 AMU लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन का 5.48 इंटू 10⁻⁻4 AMU। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।